Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda. The topic for today's video is power. In class 9th you have already studied the power, but that power was mechanical power and mechanical work done. But this year you will study electrical power and electrical work done. Now, the rate of doing electrical work is known as power. In class 9th you have studied the rate of doing work is known as power. But यहाँ पे work done कैसा electrical work है, because when current flows तो an electrical appliance is doing some electrical work. So the rate of doing electrical work is known as electrical power, or simple we can say power. The SI unit of electrical power is watt. Power is measured in watt. The formula for the power is power equals to work done upon में time. Now work done, as you have already studied in class 9th, कि work done is always equals to electrical energy. Work done is equals to energy, but here the energy is electrical energy, तो work done will be equals to electrical energy consumed. Means जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन करते हैं हम लोग, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही वर्क डन के इक्वल होगी. तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम से अपॉन में टाइम टेकन. तो पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम. तो here two formulas are written. Power equals to work done upon में time, and second is power equals to electrical energy consumed upon में time. In numericals, if and work done is given, then you have to use the first formula, power equals to work done upon my time. And if electrical energy consumed is given, for example 10 joule of energy is consumed by this electrical device, then you have to use the second formula, that is power equals to electrical energy consumed upon my time taken. Now the SI unit of electrical power is watt. So we will define the definition of 1 watt. So when an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, then its power is said to be 1 watt. अगर कोई electrical device 1 joule of energy consume कर रहा है in 1 second, then the power of that device will be 1 watt. ठीक है, अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है, देन द पावर ऑफ दैट डिवाइस विल बी 1 वॉट. तो 1 वॉट विल बी इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड. Now there are 3 formula of power in terms of V, I and R. V is the potential difference, I is the current, R is the resistance. So we will derive all the 3 formulas one by one. तो फर्स्ट इज पावर इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई. तो पहले हम लोग डिराइव करेंगे पावर का फॉर्मूला वी एंड आई के टर्म्स में, मीन्स वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में. तो द फर्स्ट स्टेप इज पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन. ये तो बेटा पावर की डेफिनेशन होती है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन. नाउ from the definition of potential difference, you have already studied the topic potential difference.
तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता था V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। तो व्हेन V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, तो W विल बी इक्वल्स टू V इंटू Q। तो यहाँ पे W का फॉर्मूला आ गया V इंटू Q। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करेंट, Q की वैल्यू क्या होती है? Q जो होता है चार्ज होता है, वो होता है Q इक्वल्स टू आई टी। करंट की डेफिनेशन होती थी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो I का फॉर्मूला होता था Q अपॉन में T। तो वहाँ से Q का फॉर्मूला क्या हो गया? I बाई Q इक्वल्स टू I इंटू T। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ Q इंटू सेकेंड इक्वेशन and then we will put the value of W in the first equation. So now see this step, W equals to V into Q था यहाँ पे, तो Q की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? IT। तो W हो गया VIT। Now we will put this value of W in first equation। तो P equals to VIT अपॉन में T, तो T and T will be cancel, तो P equals to V अपॉन में I। तो बेटा बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं पावर की डेफिनेशन से P इक्वल्स टू W बाई टी, देन वर्क डन जो कि वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आएगी, देन फिर चार्ज की वैल्यू करंट की डेफिनेशन से आएगी। तो Q की वैल्यू हमें थर्ड की इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड में पुट करनी, देन सेकेंड की फर्स्ट में, देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज पावर इक्वल्स टू voltage into current. So P equals to V into I. This is the first formula of power which is in terms of V and I. Now moving towards the second formula. Now we will derive the formula of power in terms of I and R. ठीक है, I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, R इज द रेजिस्टेंस। अब हम पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे I और R के टर्म्स में। तो नाउ अभी हमने डिराइव किया है पावर का फॉर्मूला फर्स्ट V और I के टर्म्स में, P इक्वल्स टू V इंटू आई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम ओम्स लॉ से R की वैल्यू होती है V अपॉन में I। तो यहाँ से V की वैल्यू हो गई I इंटू R। तो ये V की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो P इक्वल्स टू आई आर इंटू आर। ठीक, नाउ R इंटू आर विल बी सॉरी हियर इज वन टाइपिंग मिस्टेक, दिस विल बी आई। ये जो है ये R नहीं, ये I होगा। ठीक है, तो P इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, तो दिस विल बी P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। फर्स्ट फॉर्मूला वॉज P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो P इक्वल्स टू V इंटू आई से ही हमने सेकेंड फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड फार्मूला विच इज़ इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो हमें तीन टर्म्स में निकालना था, V के टर्म्स में, I और R, तीन जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके टर्म्स में। तो फर्स्ट फार्मूला वॉज P इक्वल्स टू V इंटू आई, सेकेंड इक्वल्स टू P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R, नाउ थर्ड इन टर्म्स ऑफ V एंड R।
तो बेटा फिर से इसकी स्टार्टिंग वहीं से, P का फॉर्मूला होता है V इंटू वाई, जो कि फर्स्ट फॉर्मूला होता है V और I के टर्म्स में. फ्रॉम ओम्स लॉ से नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ I. इन द प्रीवियस फॉर्मूला हमने V की वैल्यू पुट करी थी ओम्स लॉ से. V की वैल्यू थी I इंटू आर, बट इन दिस केस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ I, क्योंकि यहाँ पे हमें V और R के टर्म्स में चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें I को यहाँ से रिमूव करना है. तो I की वैल्यू हम पुट कर देंगे. तो P इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह आ गया V अपॉन में R, तो ये P का फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन में R. तो दीज वर द थ्री फॉर्मूलाज ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ V, I एंड R. तो नाउ इनका यूज़ होता है इन न्यूमेरिकल्स. तो विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज़, दिस डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन इन द न्यूमेरिकल. अगर क्वेश्चन में V और R के टर्म्स में है तो यू हैव टू यूज़ पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R. अगर क्वेश्चन में I और R की वैल्यू गिवन है देन यू हैव टू यूज़ P इक्वल्स टू I स्क्वायर R. और अगर क्वेश्चन में V और I की वैल्यू गिवन है देन यू हैव टू यूज़ P इक्वल्स टू V इंटू I. Now unit of energy, so there are two units of energy. First is the SI unit and second is the commercial unit of electric energy. तो बेटा SI unit तो जूल होती है, you have already studied. तो SI unit of electrical energy is joule. Now the commercial unit of electrical energy is किलोवाट आर. किलोवाट जो होती है वो पावर की होती है, पावर की SI यूनिट वाट होती है, जिसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे अगर न्यूमेरिकल्स में गिवन है, और टाइम हम आवर्स में लेंगे. तो कमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इज किलोवाट आवर्स. नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड द कमर्शियल यूनिट. तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. तो बेटा 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं, 1000 वाट होते हैं. तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट. और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं. तो ये वी हैव रिटन 3600 सेकेंड्स. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3600 इंटू 1000. तो दिस विल कम. नाउ व्हेन वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल और 10 की पावर के टर्म्स में, तो दिस विल कम 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड. तो वाट सेकेंड will be equals to joule. तो 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10 की power 6 joule. Okay, I hope it is clear to everyone. Thank you.